Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope all of you will be fine. We are doing unit number 6, work and energy. And in the last lecture we have discussed about the work in detail. And the topic of today's discussion is energy, kinetic energy and potential energy. We will discuss all these topics in detail. And after this lesson, you will be able to define energy and identify kinetic energy and potential energy. And you will be also able to give examples of these two forms of energy, and you will be able to explain how one can transfer to the other. So let's proceed. First of all, what is meant by energy? As I told you that if we want to do any kind of work, we need energy. So, the energy is defined as the ability of body to do work. Body में जब इतनी ability हो कि वो कोई भी काम कर सके, तो हम ये कह सकते हैं कि the body has energy. And the ability to move or cause change in matter. We can also define energy as ability to move or cause change in matter. Okay. Energy exists in various forms such as mechanical energy, heat energy, light energy, sound energy, electrical energy, chemical energy and nuclear energy. Energy की बहुत सी form है students. We will discuss all these forms in the next lecture in detail. In this lecture we will discuss the types of mechanical energy, that is kinetic energy and potential energy. But before we proceed to the main topic, we need to know the law of conservation of energy. Although this law is not given in your textbook, but it is very important for you to know about this law. This law states that energy cannot be created or destroyed, but can only be changed from one object to the other, or you can say that from one form to another form. Students, energy को ना तो हम खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना ही हम एनर्जी को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जांपल, केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है. यू हैव टू रिमेंबर दैट कि एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होगी, लेकिन हम उसे ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ओके, I hope you understand this law. Now we will come to our main topic, the types of mechanical energy. But what is mechanical energy? A mechanical energy is that energy which is possessed by a body due to its position or motion is called mechanical energy. जब भी किसी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी मूवमेंट की वजह से अगर एनर्जी है, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. And mechanical energy has two main types, kinetic energy and potential energy. And we will discuss the kinetic energy and potential energy in detail. So first of all, what is kinetic energy? The energy possessed by a body due to its motion. Students, अभी हमने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी या बॉडी में मूवमेंट की वजह से होती है या उसकी पोजीशन की वजह से होती है. तो जब बॉडी में मूवमेंट की वजह से एनर्जी होगी, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. एंड एज आई टोल्ड यू दैट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म. सो काइनेटिक एनर्जी कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड इनटू other types of energy, and the unit of energy is joule. So kinetic energy has also SI unit joule. Now look at these figures. Like car is moving, a girl is cycling and a boy is running. All the figures shows that the bodies are in motion. Bodies are doing some movement. So the energy possessed by these bodies due to their motion is called kinetic energy. These bodies has kinetic energy due to which they are moving. The car is moving, the girl is cycling and the boy is running due to kinetic energy.
There are some more example of kinetic energy so that you can understand it more properly. So shooting a rubber band is also example of kinetic energy. Water falling over the fall, a yo-yo in a motion, and also releasing the arrow from the bow. All these are the examples of kinetic energy. So student, I hope you got it that when the bodies are in movement, so in that case the energy possessed by the body is called kinetic energy. Okay, now we will derive the formula of kinetic energy with the help of its explanation. So look at this figure. Consider a body is moving. This body is moving. It has some mass and velocity. It has mass and moving with velocity v. The body stop after moving some distance s due to some opposing force such as force of friction acting on it. Students, अगर ये बॉडी मूवमेंट करने के बाद थोड़ी देर के बाद स्टॉप हो जाती है तो वो किस वजह से स्टॉप होती है? जाहिर है उसके ऊपर कोई सी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही होगी. यू हैव डिस्कस्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन डिटेल इन चैप्टर नंबर 3 कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी फ्रिक्शन होती है, कौन सी आपके पास फोर्स होती है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को अपोज करती है. दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन. तो अगर बॉडी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, तो बॉडी possess kinetic energy and capable to do work against the force until all of its kinetic energy is used up. तो जब एक कार मूव करके जा रही है कॉन्टिन्यूसली उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, या कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है जैसे हम वॉक कर रहे हैं तो कॉन्टिन्यूसली हमारे ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रही है, लेकिन हम तब तक उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर सकते हैं जब तक हमारी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है और जब तक वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी यूज्ड नहीं हो जाती. जैसे ही वो पूरी काइनेटिक एनर्जी यूज्ड हो जाएगी बॉडी स्टॉप हो जाएगी. ओके, जैसे आपने ये देखा कि कार पहले मूव कर रही थी, जब अगर उसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगी तो कार की अगर पूरी काइनेटिक एनर्जी यूज्ड अप हो गई है तो कार स्टॉप हो गई है. अब अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखना चाहें तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी बॉडी की किसकी इक्वल है? अगर वर्क डन हो रहा है बाय इट ड्यू टू मोशन, मूवमेंट की वजह से अगर वर्क डन होगा तो फिर हमारे पास वहां पे जो एनर्जी बॉडी की होगी वो कौन सी होगी? काइनेटिक एनर्जी. सो आपको पता है कि वर्क डन का क्या फार्मूला है? एफ डॉट एस, एफ मल्टीप्लाई बाय एस. अब यहाँ पे अगर हम बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी देखें दैट इज वी, जिसको हमने वी से रिप्रेजेंट किया था, एंड फाइनल वेलोसिटी इज जीरो. व्हाई फाइनल वेलोसिटी इज जीरो? फाइनल वेलोसिटी जीरो है क्योंकि बॉडी पे एक अपोजिंग फोर्स ने एक्ट किया है और बॉडी स्टॉप हो गई है. तो जब स्टॉप हो गई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो होगी. एंड स्टूडेंट्स, वी नो फोर्स फ्रॉम द सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ दैट फोर्स इक्वल्स टू ma. क्योंकि बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है तो यहाँ पे जो हम एक्सेलरेशन लेंगे वो हमारे पास ए से उसको रिप्रेजेंट करेंगे. अगर बॉडी की मूवमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में हो तो देन हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को यूज करते हैं. ओके, सो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एफ इज इक्वल्स टू ma. अब यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन को फाइंड करना चाहें, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया है, पहले बॉडी की वेलोसिटी v थी, फिर वो स्टॉप होगी और वेलोसिटी जीरो होगी, तो यहाँ से अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करें तो दैट इज नेगेटिव एफ बाई एम. अब यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने क्यों पुट किया है? क्योंकि मोशन अपोज्ड हो रही है. बॉडी तो मूवमेंट कर रही थी लेकिन अपोजिंग फोर्स ने जब उसके ऊपर एक्ट किया तो बॉडी स्टॉप होगी. दैट्स वाई हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट किया है. नाउ बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as equal to vf square minus vi square, and by putting all these value in this equation we get the formula for kinetic energy. So in the acceleration we put minus f by m and vf 0 and vi v. 0 का स्केयर आपको पता है 0 ही होगा, v का स्केयर v, एंड यहाँ पे ये माइनस साइन कट हो जाएगा इस माइनस साइन से और मैस जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड द इक्वेशन इज एफ एस इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर. और यहाँ पे हमने देखा था कि एफ एस किसके बराबर था? काइनेटिक एनर्जी के. सो वी कैन पुट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर.
स्टूडेंट्स, जब भी वर्क डन मूवमेंट की वजह से होगा तो वहां पे जो बॉडी के अंदर एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी बॉडी की किसके इक्वल होगी? जब भी वर्क डन मूवमेंट की वजह से होगा। ओके, so we derive the formula of kinetic energy and you have to practice this and remember this. Okay, and students, as we check in the formula that the amount of kinetic energy as is determined by its speed or you can say velocity and its mass. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? मैस पे डिपेंड कर रही है और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जितनी फास्ट मूव करेगी उतनी ही ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। अब अगर आप ये फिगर को देखें तो आपने मुझे बताना है कि विच ऑब्जेक्ट हैज ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी, बॉडी ए और बॉडी बी। अब बॉडी ए की जो स्पीड है वो कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, और जो बॉडी ए की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है एंड बॉडी बी की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है। तो आपने बताना है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, किसकी स्पीड ज्यादा है। ओके, और जैसे काइनेटिक एनर्जी स्पीड पे डिपेंड कर रही है, मैस पे भी डिपेंड कर रही है, तो जितना ज्यादा मैस होगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस फिगर में देख के बताएं कि विच बॉल हैज द ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी, बॉल ए और बॉल बी, किस बॉल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, नाउ व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? Potential energy is that energy that is stored in an object due to position. स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट में देखा कि मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास किस वजह से होती है? या तो बॉडी की मूवमेंट की वजह से या फिर बॉडी की पोजीशन की वजह से। तो अगर बॉडी की मूवमेंट की वजह से एनर्जी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है उसकी पोजीशन की वजह से, then this type of energy is called potential energy and it is ready to be used but not being used। और ये हमेशा रेडी होती है यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप रेस्ट करते हैं, आप एक पोजीशन पे बैठे हैं, तो आपके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। वो आप रेडी टू यूज है। रेडी टू यूज का मतलब है कि अगर आपको उठ के कहीं जाना पड़ता है तो यू कैन मूव, आपके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो चुकी है जिसको यूज करके, जिसकी वजह से आप उठ के मूव करेंगे। और जब आप मूवमेंट कर रहे होंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी देन मूवमेंट की वजह से किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। सो वी कैन से दैट इट कैन आल्सो बी ट्रांसफर्ड इनटू अदर टाइप ऑफ एनर्जी एंड इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, सो इट्स SI यूनिट इज आल्सो जूल एंड डिस्टेंस एंड mass determine its measure। डिस्टेंस यानी कि हाइट और मैस से हम इसको मेजर कर सकते हैं। मतलब पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे डिपेंड करती है एंड मैस पे डिपेंड करती है। ओके, एंड इट इज फाउंड इन ऑल ऑब्जेक्ट्स। जितनी भी ऑब्जेक्ट हमारे पास प्रेजेंट हैं जो किसी पोजीशन पे हैं, उन सब के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। नाउ देयर आर two types of potential energy that is given in your textbook, that the first one is elastic potential energy and the second one is gravitational potential energy. Now we discuss about these two types of potential energy. So first of all we will discuss about gravitational potential energy. The amount of potential energy is determined by its height and mass. मैंने अभी आपको बताया कि potential energy किस किस पे डिपेंड कर रही है? हाइट पे और मैस पे डिपेंड कर रही है। तो जितनी ऑब्जेक्ट हाइट पे होगी उतनी ही उसकी काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर होगी। ओके, सो अगर आप इस फिगर को देखें तो विच बॉल हैज ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एनर्जी? बॉल ए और बॉल बी, किस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर होगी? आपने ये मुझे बताना है क्योंकि हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, वो हमारे पास किसके थ्रू हमें पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज डिटरमाइंड बाय इट्स हाइट एंड मैस, कि बॉडी की हाइट कितनी है और बॉडी का मैस कितना है। और जितना
हाई ऑब्जेक्ट होगी उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर होगी. सो वी कैन से दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज ड्यू टू हाइट. जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट तक लेके जाएंगे हम, तो जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी. ओके. And now what is meant by elastic potential energy? Elastic का क्या मतलब है? जब भी elastic का वर्ड हमारे माइंड में आता है तो it means लचक. जब किसी बॉडी में elasticity प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा? The energy stored in elastic material. अब कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो इलास्टिक होते हैं, जैसे स्प्रिंग है, या इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जो इलास्टिक हैं. तो उनके अंदर जब हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होगी, आइदर हम उन्हें स्ट्रेच करें या हम उन्हें कंप्रेस करें. जैसे एक स्प्रिंग को आप स्ट्रेच भी कर सकते हैं और कंप्रेस भी कर सकते हैं. तो वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होगी is related to the amount of stretch apply. तो जितना हम स्ट्रेच करेंगे या जितना हम कंप्रेस करेंगे, उस टाइम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी बॉडी में स्टोर्ड होगी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. एंड जितना ज्यादा हम स्ट्रेच करेंगे उतनी ज्यादा हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड होगी. अब आप इस फिगर को देखें तो विच बो हैज ग्रेटेस्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? किस बो की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है? इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या इस केस में ज्यादा है? अभी आपने ये डिस्कस किया कि जितना ज्यादा हम स्ट्रेच करेंगे उतनी ज्यादा उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड होगी. और एक बॉडी के अंदर स्ट्रेच्ड पोजीशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके. Now we will explain and derive the formula for potential energy. So, for example, we discuss that let a body of mass m be raised up through a height h from the ground. For example, हमने एक बॉडी को क्या किया है? For example, ये एक बॉडी है जिसको हम किसी हाइट तक लेके गए हैं ग्राउंड से. तो the body will acquire potential energy equal to the work done in lifting it. तो बॉडी पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगी, और कितनी पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करेगी? जितना उसने वर्क डन किया है इन लिफ्टिंग इट टू हाइट. अब फॉर एग्जांपल ये एलिफेंट है, इसको हम उठा के किसी हाइट तक लेके जा रहे हैं इस बॉडी को, तो इसको लिफ्ट करके लेके जाने में जितना वर्क डन हुआ है वो किसके बराबर होगा? जितनी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है. ओके. सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एच. अब काइनेटिक एनर्जी के केस में तो हमने एफ मल्टीप्लाई एस कहा, यहाँ पे हमने एच क्यों यूज किया? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइट की बात हो रही है, वहां पे हाइट की बात नहीं हो रही थी. काइनेटिक एनर्जी में सिंपली हम ये देखते हैं कि मूवमेंट की वजह से जब वर्क डन हो रहा है, फिर हम उस वक्त बॉडी में जो एनर्जी होती है दैट इज काइनेटिक एनर्जी. लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में बात आती है पोजीशन की, और वो पोजीशन हाइट की वजह से भी हो सकती है और वो स्ट्रेच्ड पोजीशन भी हो सकती है. तो अगर हम हाइट के अकॉर्डिंग देखें, एक बॉडी को जब हम हाइट तक लेके गए हैं, फिर बॉडी ने जो पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर किया है वो उसके वर्क डन के इक्वल होगी जितना हमने उसको लिफ्ट करने में लगाया है. सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एच एंड F इज इक्वल टू W. यहाँ पे हम फोर्स को वेट के इक्वल ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बेटा कि हमारे पास जब अर्थ किसी भी बॉडी को अपनी तरफ जितनी फोर्स से एक्ट करती है, अट्रैक्ट करती है, वो उस बॉडी का क्या होता है? वेट होता है. तो यहाँ पे हम फोर्स को W के इक्वल पुट कर सकते हैं, F इज इक्वल टू W, एंड यू नो वेट की क्या इक्वेशन है? W इज इक्वल टू mg. सो यहाँ पे हम फाइनल इक्वेशन क्या पुट करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई एच एंड इज इक्वल टू mg. mg हमने किसकी जगह प्लेस किया? वेट की जगह, mg एंड h. Thus the potential energy possessed by the body with respect to the ground is mgh and is equal to the work done in lifting it to the height h. इसको हाइट तक ले जाने के लिए जितना वर्क डन हुआ है वो हमारे पास किसके बराबर होगा? mgh के बराबर होगा. और बॉडी के अंदर इस कंडीशन में कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी. I hope students you got it. And now students we discuss that these energies are converted to each other. Look at this figure. When stored energy began to move, the object now transfer from potential energy into kinetic energy. जब हमारे पास ये पर्सन है, ये अभी अपनी पोजीशन पे खड़ा है, एक
एक पोजीशन पे खड़ा है स्टैंडिंग पोजीशन में, अगर ये मूव करना स्टार्ट कर देगा तो जो स्टैंडिंग पोजीशन की वजह से इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह मूवमेंट करने के बाद जब एक पर्सन स्टॉप कर जाता है, एक पोजीशन पे आ जाता है, फिर उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्ट होके किस में चली जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में चली जाती है। तो ये दोनों एनर्जीज आपस में कन्वर्ट हो सकती हैं एंड इवन ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल and I hope this lecture helps you to understand about the types of mechanical energy, that is kinetic energy and potential energy, in detail. Now again it is the time for your home task, student. You have to do the exercise questions that is related to this lecture, question 6.5, 6.6 and 6.7, and you have to practice the solve example 6.2, 6.3 and 6.4, and also you have to do these four numericals because all in these numericals the formula is used of kinetic energy and potential energy. For example, in 6.2 numerical you have to find the potential energy, and in 6.2 you have to find kinetic energy, and in 6.4 you have to find both kinetic energy and potential energy, and in 6.5 numerical you have to find also kinetic energy and potential energy. In this lecture, formula of both kinetic and potential energy is explained, so you have try your best to solve these numerical. But in the case of query, any problem, you can ask me anytime, students. Thank you. Stay safe and Allah Hafiz.